तो पहले के जमाना में तो वैल्यू था, आज भी हमारा वैल्यू है। ये बोलिए ना कि आपको पता नहीं है। कौन सी नहीं पता है रे? इंडिया का अपना गेम जुबी लूडो के बारे में पता है? क्या होता है उस पे? इंडिया पेंटिंग। ओके, नाउ पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम आज। सो पेंटिंग इज़ ऑल अबाउट India has a long tradition of artistic excellence. So painting is a primitive rock. There is a primitive rock painting. Okay, and this is painted potteries also there. Potteries and variety of the form is रूप वेदा। रूप को क्या किया जाता है? वेदा जाता है, रूप वेद। Then सदृश्यम। सादृश्यम मतलब लाइकलीनेस ऑफ सब्जेक्ट। भावा मतलब लस्टर, भावा मतलब लस्टर। देन प्रमाणा। प्रमाणा मतलब व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, प्रमाण देना। व्हाट इज़ द प्रमाणा? दैट इज़ द सब्जेक्ट। एंड लावण्य। लावण्य मतलब इमोशंस। लावण्य मीन्स इमोशंस। प्रमाण मीन्स सब्जेक्ट। एंड वर्णिखंबा। वर्णिखंबा मीन्स व्हाट इज़ रिसेंबलिंग इफेक्ट। सो they are the Brahminical and Buddhist literature. So there is textile and lepya chitra. Lepya chitra means lekha chitra. Okay, so the major features is the isolated frame drawing. It is drawing format or long scroll painting or isolated painting. So petrograph. Petrograph means the Bhimbetka. Bhimbetka in the Madhya Pradesh, which is important for the painting. And Jew rock shelter is also important. Upper Paleolithic period, there is a Ochre and Geru. Ochre and Geru, that was upper Paleolithic painting. Mesolithic is a red color. They were using hunting scenes also. In Meso, like in upper Paleolithic, human figure were there. In Mesolithic, hunting figure. And Chalcolithic is the elephants and riding horses, bow and arrow. Brahmi script was using in the Chalcolithic. Narsinghgarh and art of tanning skin. Jogimara caves are very important for this period. And Bhimbetka painting, which is in Madhya Pradesh, UNESCO World Heritage Site 2003. And mural painting is also important. So if I'm talking about the mural painting, so this mural painting is 10th century to 10th century AD, and this was Ramanachaya and Ajanta, Ellora, Bagh cave, Sitanivasan cave. Hindu, Buddhist and Jain, all of three were there in the Jogimara cave. Ajanta cave, this Ajanta cave is the mural fresco, and there is a 29 caves of the Ajanta. And this is the temple tempera style. This is the tempera style Jatak story. There is a Jataka story. And this is Vajrapani, that was the symbol of Buddhist power, Vajrapani. And Manjusri, that was the Buddha wisdom. And Padmapani, that was the Avalokiteshvara, Buddha compassion. So Padmapani was the compassion of the Buddha, and Vajrapani, that was protector, Buddha as a protector. Padmapani matlab symbol of the compassion. Dying princess and the Sibbi Jatka, elephants and the Maitri Poshka Jatka. Now Ellora painting. Jatak story is lion, skin, cat, timid rabbit, jackal, crow, lion and woodpecker. Like lots of Jatak stories were there in the Gautam Buddha human and animal form. Okay, now next one is Ellora painting. This Ellora painting is the Kailash temple. So this Kailash temple is very important, and this is based on the Buddhist, Jainism and Hinduism. Image of goddess Lakshmi, Shiva and the glaciers Apsaras. Bagh painting, that was in Madhya Pradesh. It is close to the actual Ajanta cave.
and there is also Jatak stories. Arma Malai cave that was in the Tamil Nadu, that was Jain based. Sita Vasan cave that was in also Tamil Nadu. So Sita Vasan, this question was also asked many times. Sita Vasan in the Tamil Nadu, this is the Jain painting, and that is Pallava period. That is the Pallava period. And next is the Ravan Chaya, that was in Odisha. Ravan Chaya, it is in Odisha, and it is Royal Hunting Lodge of 7th century. Lepakshi temple, and Lepakshi in the Andhra Pradesh. Lepakshi temple, that was in the Andhra Pradesh. So Lepakshi is the complete primary color was not there. It is black colored painting. And Jogimara cave painting. Jogimara, it is in Chhattisgarh. So Jogimara is in the Chhattisgarh, and that was rock cut painting of the Sita Benga. Okay, Jogimara, that was in the Chhattisgarh. Next is the mural of Badami cave, that is Karnataka. Badami cave, and that is in the Karnataka, and it is the Hindu survival, one of the earliest Hindu survival, Ajanta, Bagh and all that. Okay, so mural painting of Badami, that was in the Karnataka. Miniature painting, it was red lead painted, illuminated manuscript was in the miniature. So technique of the miniature painting is it is 24 square inch. Subject of the painting is 1/6 of actual size. Side profile, bulging eye, pointed nose, slim waist, and Lord Krishna is a blue color, and color of their eyes was the black. Early miniature painting, that was 8th to 12th century. Two prominent school, that was Pala school and Abhransha. Pala school in the miniature, that was palm leaf they were using, and Vajrayana and Buddhist style was there in the Pala school. And in the Abhransha school, there was a Gujarat and Mewar in the 18th and 15th century. They also using palm leaf and the paper for the dimensions of the fish shaped eyes and the pointed nose and double chin. Next is the transitional period of miniature. So transitional period of the painting was this is the Muslim on the Indian subcontinent, and that was the Deccan style of the painting. Okay, now miniature art during the Delhi Sultanate. So Delhi Sultanate was the Nimatnama, and it was Lodi Khulasar. Okay, so it was Nimatnama, and that was in the miniature of the Delhi Sultanate. Okay, Nimatnama. And now next one is the Mughal era miniature. So it was the glorification of the hunting scene and royal scenes. So that was brilliant color they were using in the Mughal period. Now next is early Mughal painter, that was Babur. So Babur was the Bijhat, and हुमायूं के समय में दो पेंटर थे, अब्दुल समद and Mir Sayyid Ali. And Tutinama was very important for the painting. And अकबर के समय में जो था तस्वीर खाना बनाया जाता था, देयर वॉज ए अवार्ड्स भी दिए जाते थे. इंडियन इन्फ्लुएंस था, 3 डायमेंशनल फिगर बनने लग गए थे अकबर के समय में, 3D, और कैलीग्राफी की जाती थी. दसवंत, बसावन और केसु, ये 3 लोग थे अकबर के समय. जहांगीर जो था वो नेचुरलिस्ट था, नेचुरल कलर, फ्लोरा फोना, पोर्ट्रेट पेंटिंग और डेकोरेटेड मार्जिंग वगैरह करता था. एंड इसके समय था उस्ताद मंसूर. तो उस्ताद मंसूर जो था ये किसके समय था? जहांगीर के समय था. ठीक है ना. उसके बाद शाहजहाँ जो था, और शाहजहाँ के समय में रिड्यूस द लाइवलीनेस, यूरोपियन इन्फ्लुएंस आ गया था, यूरोपियन इन्फ्लुएंस. एंड यहाँ पे चारकोल का यूज़ करने लग गए थे वो. एंड दिस इज स्केच और पेंसिल के स्केचेस बनाने लग गए थे. गोल्ड और सिल्वर का उपयोग करते थे. ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का ना. उसके बाद में औरंगजेब ने इंकरेज किया था पेंटिंग को. ठीक है ना. नेक्स्ट इज़ द रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट में राजस्थानी है. राजस्थानी में राजपूत पेंटिंग है, बीकानेर, जोधपुर.
मेवाड़ पेंटिंग जो होती है रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ में होता है, जो कि शिबिदिन तमाशा पेंटिंग भी होती थी। ठीक है, मेवाड़ पेंटिंग कहाँ होती थी? रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ में, और इट वाज द रामायण और महाभारत पर बेस्ड थी। फिर है किशनगढ़ पेंटिंग। किशनगढ़ पेंटिंग में बनी ठनी थी। ठीक है, बनी ठनी सावंत सिंह ने बनाई थी। निहाल चंद जो था पेंटर था, राधा कृष्ण पर बेस्ड थी। फिर बूंदी स्टाइल को हाड़ौती स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पे लोकल वेजिटेशन, रेड रिबन और मतलब एनिमल हंटिंग वगैरह ऐसे सब सीन्स थे। फिर आम्बेर जयपुर स्टाइल, जयपुर में ढूंढार स्टाइल, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोक स्टाइल ऑफ द सवाई प्रताप सिंह was very prominent painter in the Jaipur. Pratap Singh. Okay, Pratap Singh was a great painter of the Jaipur style of the architecture. उसके बाद था मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग। फिर था मारवाड़। ओके, मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग में एक तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आ जाता है। कलरफुल क्लोथिंग होती थी। मानसिंह यहाँ का इम्पोर्टेंट था। फिर हमें मुग़ल जैसे राजपूत स्टाइल है वो कि मुरल पे बेस्ड है, वैसे मुग़ल दैट इज़ पर्शियन स्टाइल है। राजपूत में डिवोशनल सीन होते हैं तो मुग़ल में रॉयल सीन होते हैं। राजपूत जो है हिंदू सिंबल को लोटस पिकॉक, वैसे ही मुग़ल जो है कैमल और फाल्कन्स एंड ट्री, ये 17 से 18 सेंचुरी, वो भी 16 से 18 सेंचुरी। पहाड़ी स्टाइल में सब हिमालयन है। जम्मू अल्मोड़ा स्टाइल है, बासोली स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल है साउदर्न में। ठीक है, और इसके पहाड़ी स्टाइल के जो हैं वो है नेनसुक और मनाकू। नेनसुक और मनाकू। फिर है बाशोली स्कूल। बाशोली स्कूल जो है दैट वाज, जिसमें बड़ी बड़ी आँखें, लोटस पीटल और प्राइमरी कलर यूज़ में लिए जाते थे। राजा कृपाल सिंह जो था ये बाशोली स्टाइल का था। एंड रास मंजरी, राधा कृष्णा, देवीदास बोरोड द मालवा पेंटिंग। ठीक है, बाशोली स्टाइल। कांगड़ा स्कूल जो है, कांगड़ा स्कूल में गोवर्धन सिंह है और राजा संसार चंद है। और कांगड़ा स्कूल में लव ऑफ द कृष्णा के सीन्स होते थे, दैट इज़ कांगड़ा स्कूल। फिर है रागमाला। रागमाला पेंटिंग, आर्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ अमलगमेशन ऑफ द क्लासिकल म्यूज़िक। फिर राग और कलर होते थे, कुछ मूड्स एंड सीजन्स होते थे। ठीक है, फिर मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द साउथ की बात करें हम तो सबसे पहले थी तंजौर की पेंटिंग। ठीक है, तंजौर की पेंटिंग में ग्लास है, ब्रिलियंट कलर होते थे, डेकोरेटिव होती थी, ब्रिलियंट कलर। एंड ये क्या है? डेकोरेटिव होती थी। और यहाँ पे ग्लासेस का यूज़ में लेते थे। और सरफोजी महाराज, स्माइलिंग कृष्णा की बात की गई है। कृष्णा वॉज इन द स्माइलिंग फेस। इसके बाद मैसूर पेंटिंग है। मैसूर पेंटिंग में हिंदू गॉड एंड गॉडेस थे, गॉड प्लस गॉडेस थे। एंड यहाँ पे वन फिगर था जिसमें आप गेसो पेस्ट म्यूटेड कलर होते थे। फिर लास्ट एक कंपनी पेंटिंग में यूरोप की जो पेंटिंग है दैट वाज एलिमेंट ऑफ द ब्रिटिश एलिमेंट। और यहाँ पे मिक्स कलर, वाटर कलर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी। ठीक है, फिर बाजार पेंटिंग जो थी यूरोप की थी। यहाँ पे ग्रीक और रोमन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। लॉर्ड गणेशा का भी। राजा रवि वर्मा जो था वो केरला का पेंटर था। ठीक है, राजा रवि वर्मा। और यहाँ पे मदर इंडिया, मूनलाइट, काफ़ी सारी पेंटिंग होती थी। फिर बंगाल में कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। और ये जो है स्वदेशी भारत माता, नंदलाल बोस को भी जान सकते हो आप, नंदलाल बोस। और शांति निकेतन। ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, उसने भी काफ़ी पेंटिंग्स बनाई। फिर था क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। क्यूबिस्ट स्टाइल में ब्रोकन एनालिसिस होते थे। M.F. हुसैन को आप बहुत अच्छा पेंटर मानते हैं, M.F. हुसैन। ठीक है, फिर उसके बाद में है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। प्रोग्रेसिव में फ्रांसिस न्यूटन साउजा, S.H. राजा और M.F. हुसैन। राजा हो गया, M.F. हुसैन हो गया और न्यूटन साउजा, ये इम्पोर्टेंट पेंटर है। फिर हम फोक पेंटिंग की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग है जो कि बिहार में है।
फिश को डिपिक्ट करना सिंबॉलिक होती है, कुछ लाइनिंग्स होती हैं, राइस पेज 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, ठीक है। वुमेंस बनाती हैं, जीआई टैग दिया गया है। पटचित्र उड़ीसा में जो फेमस है उसको कहते हैं पटचित्रा। पटचित्रा ये क्लोथ पर बनाया जाता है, पेंसिल का यूज़ नहीं लिया जाता है। इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ द बर्न्ड कोकोनट शेल से बनाया जाता है, कोटिंग होती है। जगन्नाथ और वैष्णवाइट कल्ट है। इसको ताला पटचित्रा भी कहा जाता है, जो कि पाम लीफ से बनाया जाता है, उसको कहते हैं ताला पटचित्रा, ठीक है। फिर है पटुआ आर्ट। पटुआ आर्ट जो है वो कहाँ है, बंगाल में है, और ये रिलीजियस फिगर है, पॉलिटिकल सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कालीघाट पेंटिंग। इट इज़ ऑल्सो इन कैलकट्टा। वाटर कलर, रिलीजियस नोट, सोशल सेंटिमेंट्स होते हैं सारे। फिर उसके बाद में है पेटकर पेंटिंग, जो कि झारखंड में होती है। इसका नाम है पेटकर पेंटिंग। ये कहाँ होती है, झारखंड में होती है। और दिस इज़ माँ मनसा, व्हाट हैपन टू द ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ। कलमकारी पेंटिंग जो होती है, जो कलमकारी पेंटिंग है, दैट वाज इन आंध्र प्रदेश, और इसको कहते हैं कलमकारी, कलम के अंदर कारी करना। लाइक शार्प पॉइंटेड बैम्बू होता है कॉटन फैब्रिक पर, इसको हिंदू मेथोडोलॉजी को डिकोड करते हैं। कलमकारी इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है, कलम से कारी करना। वर्ली पेंटिंग गुजरात में होती है। एंड ये वर्ली पेंटिंग रिचुअलिस्टिक होती है और गॉडेस की फर्टिलिटी के बारे में बताती है। फिर है थांगटा पेंटिंग, जो कि सिक्किम में होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। थांगटा और ये कहाँ होती है, सिक्किम में होती है, ठीक है। और लद्दाख रीजन हो गया। बुद्धिस्ट बेस्ड होती है। नेक्स्ट कैनवास पे, कॉटन क्लॉथ्स पे की जाती है। सिल्क ब्रॉकेट्स भी होते हैं इसमें। व्हील ऑफ द लाइफ को बताया गया है। मंजूषा पेंटिंग कहाँ है, मंजूषा बिहार में है। मंजूषा पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। और दिस इज़ अबाउट द स्नेक पेंटिंग, मोटिव्स होते हैं स्नेक से रिलेटेड। फड़ पेंटिंग जो होती है, फड़ पेंटिंग पाबू जी से रिलेटेड, देवनारायण जी से रिलेटेड होती है, राजस्थान में। चेरियाल स्ट्रोल पेंटिंग तेलंगाना में होती है। तो चेरियाल पेंटिंग कहाँ होती है, तेलंगाना में होती है, ये भी स्ट्रोल पेंटिंग है। फिर है पिथोरा गुजरात में, मध्य प्रदेश में। और सोरा पेंटिंग ओडिशा में होती है। कौन सी वाली, सोरा पेंटिंग, ये ओडिशा में होती है। और ये मुरल है, वॉल मुरल है, ठीक है। फिर ये ह्यूमन शेप के ज्योमेट्रिकल स्टिक के फिगर बनाए जाते हैं इसमें। सोरा पेंटिंग इन द ओडिशा। तो ये हो गया पेंटिंग आर्ट ऑफ द इंडिया, पूरा आज का एक चैप्टर।